Father God, I come before you in your Son's name, Lord. I come before you, O Lord, for all of us gathered over here, Lord. Lord, you prepare our hearts for your word. You open our understandings, O Lord. O Lord, because of sin, our whole being has been corrupt, O Lord. Our understanding, everything, O Lord, has been turned towards evil, Lord. It is biased towards evil, Lord. The good words of yours, O Lord, your word, Lord, it's not going to go inside of us unless you do something. You open our hearts and minds, O Lord, to take this word. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. You see in this world, you must be thinking why there is so much evil in this world. आप इस संसार को देखते हो, इस दुनिया को देखते हो, सोचते हो कि दुनिया में इतना बुराई क्यों है, क्यों दुनिया में इतनी बुराई है. What is the explanation of the present condition of human race? इसका कोई उत्तर है या नहीं कि इस वर्तमान की जो पीढ़ी है, वर्तमान की जो मानव जाति है, इसका कोई उत्तर है या नहीं? क्या हो चुका है इस वर्तमान की पीढ़ी को? What has been happened to this current present human race? What is the explanation? क्या उत्तर है इसका? What is the problem of man? मनुष्य का समस्या है क्या? What is the problem? क्या समस्या है? What is the trouble that man has? मनुष्य को क्या ऐसी परेशानी है इस संसार में? And there can be only one answer. सिर्फ एक ही इसका उत्तर हो सकता है. That is sin. वो है पाप. Man is fallen. मनुष्य जो है वो गिरा हुआ है, एक गिरा हुआ प्राणी है. He is a fallen creature and that is the problem. वही एक समस्या है इस मानव जाति का कि वो पापी है, वो पाप है. He is sin. That is the only possible answer, that man is a fallen creature. And only the Holy Scriptures, only the Bible tells you so. सिर्फ पवित्र शास्त्र है जो आपको बताता है कि मनुष्य का क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है. सिर्फ बाइबल है जो आपको सिखाता है कि इस संसार का क्या समस्या है. It is only Bible that teaches you what is the problem, what is the real problem with man, and that is sin, और वो है पाप. What man was when God created him, जब परमेश्वर ने उसको रचाया, तब मनुष्य क्या था, परमेश्वर के साथ उसका क्या संबंध था, और फिर अब वो क्या है. What is man now? What was his relation before with God and what is he now? अब वो क्या है? And the Holy Scripture clearly declares, पवित्र शास्त्र जो है वो परिपूर्णता से घोषित करता है, साफ साफ घोषित करता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, उसे निर्दोष बनाया. The Scriptures clearly declares that God made man upright, निर्दोष, innocent, धर्मी, righteous. He was morally excellent. मनुष्य जो था वो नैतिक रूप से परिपूर्ण था. He was morally excellent. अच्छा ही था, बहुत अच्छा. Everyone. Innocent, morally excellent and righteous. वो निर्दोष था, नैतिक रूप से परिपूर्ण था और धर्मी था. But sadly this did not go on for long. लेकिन दुख की बात यह है कि मनुष्य इसी तरीके से नहीं चला, ये ज्यादा देर तक नहीं चला.
It did not go for long. Why? Because man fell. क्यों? क्योंकि मनुष्य गिर गया. Adam sinned. आदम ने पाप किया. He sinned, he disobeyed God. उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और वो गिर गया. अब सवाल ये है कि अब हम कैसे गिरे फिर? अगर आदम गिरा तो हम कैसे गिरे? If Adam fell, then how did we fall? वो तो आदम गिरा ना. Adam fell. Then what is the problem with us there? हम कैसे गिरे? Let us go to Romans chapter 5. रोमियो का 5वां अध्याय उसका 12 वचन. Chapter 5 verse 12. I'll read to you. Therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men because all sinned. हिंदी में कोई ऐसे पढ़ेगा? इसलिए जैसा एक मनुष्य द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और उसी से मृत्यु तब मनुष्य तक फैली जो सबने पाप किया. एक व्यक्ति के कारण पाप इस संसार में आया और पाप के कारण मृत्यु. Now because of one man sin entered the world. और आगे 18 और 19 वचन में ऐसा लिखा है, therefore as one trespass led to condemnation for all men. 19 में लिखा है, for as by one man's disobedience many were made sinners. 18 वचन का पहला भाग पढ़ो और 19 का भी पहला भाग. इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड के आगे कारण हुआ, एक घर का काम भी सब मनुष्य के जीवन के नबी ठहरे कारण हुआ. जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, एक मनुष्य आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे. Yes. So here we see the problem of man is that when Adam sinned, all men sinned in him. जब आदम गिरा तब सारे उसमें गिरे. एक अपराध के कारण सभी पर दंड आया, एक अपराध के कारण. और उसके बाद 19 वचन लिखता है कि for as by one man's disobedience, एक मनुष्य की आज्ञा न मानने के कारण सभी को पापी ठहराया गया. So due to the fall of Adam, आदम के गिरने के कारण हम सब गिरे. इन वचनों से हमें ये समझ में आता है कि परमेश्वर जिसने आदम को बनाया वो आदम को कैसे दिखता था. How he was seeing Adam? He was seeing Adam as our representative. हमारे प्रतिनिधि के तौर पर उसे देखता था. He was our representative, our head. हमारा मुख्य था वो, हमारा प्रतिनिधि था वो. इसलिए जब वो गिरा हम उसमें गिरे. जैसे यीशु मरा और उसके कारण हम सारे धर्मी ठहराए गए, वैसे ही आदम के पाप के द्वारा हम सारे पापी ठहराए गए. जैसे यीशु हमारा प्रतिनिधि है, वैसे ही पहले आदम हमारा प्रतिनिधि था. Like how Christ is now our representative, because of his sacrifice we are saved, we are righteous because of his righteousness. Same way, because of Adam's sin, we are now sinners in him. हम सब पापी है उसमें. वो हमारा मुख्य है. He is our head. He was our head. वो हमारा मुख्य था. But that is why all men sinned. सभी को पापी ठहराया गया. सभी पर वो दंड आया. Everyone is now guilty before God because Adam sinned. क्योंकि आदम ने पाप किया, अब सारे मनुष्य जाति जो आदम में है वो उन सभी पर वो दंड आया. उन सभी पर दंड की आज्ञा आई. On them is death, judgment and condemnation. मौत, दंड और न्याय, ये सभी हम सब पर आया. So it is clear by the scriptures that Apostle Paul wrote to the Romans, जो पौलुस ने रोमियो को जो पत्र लिखा,
उसमें ये साफ साफ है कि परमेश्वर आदम को हमारे प्रतिनिधि के रूप में देखता था. It is clear that God saw Adam. He viewed Adam as the head and representative of his race. उसके मानव जाति का वो मुख्य है. And so as a consequence, और परिणाम के तौर पर जब वो गिरा हम गिरे. परिणाम के तौर पर as a consequence when he fell we fell. जब वो गिरा हम गिरे. कोरिन्थियों में लिखा है कि in Adam all died. आदम में सभी मर गए. All died in Adam. Now that is the consequence of sin. यही तो पाप का परिणाम है कि मौत आई. And what is this death? It's not just physical death, spiritual death, and more than that, eternal death. सिर्फ ये मौत क्या है? ये सिर्फ शारीरिक मौत ही नहीं आई, बल्कि आत्मिक मौत. और सिर्फ आत्मिक मौत ही नहीं, बल्कि अनंत काल का मौत हम पर आया. Because of Adam. Just imagine what if Adam would have not sinned? Lord God, प्रभु परमेश्वर ने आदम से कहा कि अगर तू ये फल खाएगा तो जरूर मरेगा. You will surely die. You will surely die. So that means if he wouldn't have eaten, he would surely live. मतलब वो जीता था. अगर उसने फल नहीं खाया होता तो आज इस संसार में कोई नहीं मरता. शारीरिक रूप से कोई भी नहीं मरता. सारे लोग जिंदा रहते. सो फिजिकल डेथ, स्पिरिचुअल डेथ, आत्मिक रूप से मर जाना, एंड इटर्नल डेथ, वो है अनंत काल की मौत. बिकॉज ऑफ दिस सिन एवरीथिंग चेंज. मनुष्य पूरी रूप से बदल गया. Every person, because of this, what happened, which is known as the fall, इसे कहते हैं गिरावट, the fall, आदम का गिरना. उसके वजह से अब जो भी आदम से आएगा, everyone that will come from Adam will born in sin. जो भी आदम से आएगा वो पाप में पैदा होगा. हर एक व्यक्ति जो आदम से आया वो पापी ही पैदा होगा. See what David says. देखो दाविद क्या कहता है. दाऊद. Go to Psalms chapter 51. Psalms के 51 अध्याय उसका 5वां वचन. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. 5वां वचन कोई हिंदी में पढ़े. देख, मदर के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ एक माता के गर्भ में पड़ा. साफ है, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ. Not only I was born sinner, I was conceived as a sinner. मैं सिर्फ पैदा ही नहीं हुआ पापी, बल्कि मैं उत्पन्न भी पापी ही था. जब से मैं उत्पन्न हुआ तब से मैं पापी था. When I was conceived in my mother's womb, I was a sinner. I am a sinner. I am born sinner. मैं पापी पैदा हुआ. माँ के गर्भ से ही मैं पापी उत्पन्न हुआ. This is what happened. This is the consequence of the sin, the fall. यही तो हुआ पाप की वजह से. अब आप आश्चर्य हो जाओगे. उसका 58 अध्याय में तीसरा वचन देखो क्या कहता है. 58 अध्याय उसका तीसरा वचन. Chapter 58 verse 3. The wicked are estranged from the womb. They go astray from birth, speaking lies. दुष्ट लोग जन्म के ही पराये हो जाते हैं. वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं. How come? आप कैसे सोच सकते हो कोई जन्मा और वो झूठ बोल रहा है? ऐसे कैसे संभव है? How is this possible? कैसे संभव है ये?
It says that they go astray from birth, speaking lies. वो जन्म में हुए ही दूर चले गए और वो झूठ बोल रहे हैं. बच्चा कब बोलना शुरू होता है? 1 साल 2 साल के बाद. लेकिन यहाँ पे लिखा है जन्म से ही वो झूठ बोल रहा है. ये कैसे संभव है? How is this possible that a child is speaking lies from his birth? पैदा होते ही झूठ बोल रहा है, कैसे संभव है? वो तो बोलने 2 साल बाद लगता है. It is the lies of this sinful nature. ये जो पापी स्वभाव है वो झूठ बता रहा है हमें. जब हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं वो कितना प्यारा दिखता है, यही तो झूठ ये पापी स्वभाव बता रहा है कि दिख रहा है प्यारा लेकिन वो है पापी. यही तो झूठ वो कह रहा है. यही तो झूठ इसी को कहते हैं इट इज स्पीकिंग लाइज. जब हम छोटे को बच्चे को देखते हैं हम यही सोच रहे हैं कि अरे ये दिख रहा है अच्छा लेकिन ये एक पापी है. That is what sin does to a man. यही पाप का परिणाम है. This is the consequence of sin. Now because of Adam's sin, we all sin, and now when anyone is born from Adam, he is born sinner. जब वो पैदा होते ही वो पापी है और वो परमेश्वर के सामने क्या है? दोषी. He is guilty before God. He is guilty before God. And this is the problem of man. यही है मनुष्य की समस्या. This is the problem, that he is sin. He has a sinful nature in him. उसके अंदर ये पाप का स्वभाव पैदा हुआ है. उसके अंदर ही है ये. So the problem of man is not external, it is internal. मनुष्य का जो प्रॉब्लम जो है, समस्या है, वो बाहर का समस्या नहीं है, वो भीतरी समस्या है, वो अंदर समस्या है. इट इज इंटरनल. ये उसके अंदर है. एज अ फॉलन क्रीचर आवर होल बीइंग गेट्स करप्टेड एंड डिप्रेव्ड. एक गिरा हुआ प्राणी होने के नाते हमारा जो अस्तित्व है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है. जैसे आपने पिछली बार देखा कैसे बाहर जो हमारा शरीर है वो भी आत्मा मर जाता है, फिर प्राण मर जाता है और शरीर मर जाता है. शरीर के सारे जो हम कहते हैं ना कि 5 senses जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, when we say the 5 senses, we see, we hear, we taste, everything is still there. वो सब चीजें हैं. हम में शरीर है, हम में प्राण है, लेकिन वो भ्रष्ट हो चुके हैं पाप के वजह से. Because we are born sinners, because our nature is sin, क्योंकि हमारा स्वभाव पाप का है, हमारी जो इच्छा है वो पाप की ओर मुड़ी हुई है. Our will is changed towards evil. It has become biased towards evil. पाप की ओर मुड़ चुकी है हमारी इच्छा. You see the evidence of this. आप इसका सबूत देख लो इस संसार में. You see a child. आप एक बच्चे को देखते हो. You see a child and you don't have to teach him to lie. आप उस बच्चे को झूठ बोलना नहीं सिखाते. आपको सिखाना नहीं पड़ता. You don't have to teach a child to lie. You don't have to teach a child to get jealous. आप उसे ईर्ष्या करने से आप उसे सिखाना नहीं पड़ता कि इसके लिए ईर्ष्या कर, इसके लिए जलन कर. सिखाना नहीं पड़ता. You don't have to teach any small child to lie and to steal and to get jealous, to get angry. देखते हो ना छोटे बच्चे गुस्सा हो जाते हैं. हमें सिखाना नहीं पड़ता. You don't have to teach them. What about diseases and death? बीमारी और मौत का उसका क्या फिर? क्या आपको वो दिखता नहीं है? Don't you see the evidence? सबूत दिखता नहीं है कि मनुष्य मरता है. He dies. He get diseases. He get sick. बीमार पड़ जाता है. बुखार आता है सबको.
क्यों, कैसे, बुखार क्यों आता है, फिर हम मरते क्यों है? इट इज अ क्लियर एविडेंस, इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिन, इट इज क्लियर एविडेंस। ये एक सबूत है, एक सबूत है। You know, word says that death and diseases are normal. ये दुनिया कहती है कि मौत जो है वो बहुत ही सामान्य है, बट बाइबल सिखाती है कि मौत जो है वो सामान्य नहीं है, इट इज abnormal. इट इज नॉट व्हाट वाज डिजाइन्ड। मनुष्य को मरने के लिए उत्पन्न नहीं किया था। इट इज नॉट नॉर्मल टू डाई, इट इज abnormal बिकॉज ऑफ sin, पाप के वजह से। इट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द फॉल। ये गिरावट की वजह से मनुष्य मरता है, पाप करने की वजह से मनुष्य मरता है। इट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द फॉल। दिस इज अनदर एविडेंस ऑफ सिन नेचर। ये एक दूसरा एक और सबूत है, पाप का स्वभाव का एक सबूत है। Why should not man live forever? क्यों मनुष्य हमेशा के लिए नहीं जीता? Because Bible says the wages of sin is death. क्योंकि बाइबल कहता है पाप का वेतन मरण है, मौत है। एक और सबूत आपने शायद कभी सोचा नहीं होगा। One more evidence you must have not thought about it. आपने सोचा नहीं होगा। When you see a dog that snaps at you, जब आप एक कुत्ते को देखते हो जो आप पर झपट्टा मारता है, that is an evidence of sin. Why do I say that? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? जब आप एक कुत्ते को देखते हो जो आप पर झपट्टा मारता है, वो भी एक पाप का सबूत है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, जब उसने प्राणी को बनाया, सारे प्राणियों को बनाया, वो सारे प्राणी आदम के अधीन थे। Adam used to rule them. आदम उन पर राज करता था। वो सारे प्राणी आदम को दिए गए थे। आदम ने उनके नाम रखे हैं। He has kept the name dog, cat. उसी ने ये सारे नाम रखे हैं। और तभी मनुष्य और प्राणियों के बीच में कोई बैर नहीं था। There was no enmity against man and animals. कुछ नहीं था, लेकिन ये पाप की वजह से नाउ द एनिमल्स आर अगेंस्ट मैन। इसलिए आप देखते हो एक कुत्ता आप पर झपट्टा मार देगा, आप पर गुस्सा करेगा, एग्रेशन दिखाएगा। क्यों? पाप का परिणाम। इट इज बिकॉज ऑफ सिन। मैन वॉज इन चार्ज ऑफ एनिमल्स, ही रूल्ड देम, ही गेव नेम्स टू देम। उसी ने इन सभी को उनका नाम दिया, वो सारे उसी के अधीन थे। Now another evidence, एक और सबूत। What about the necessity of human laws? ये जो संसार के जो नियम है, जो कानून है, इसके बारे में क्या सोचते हो? ये सारे कानून अवश्य होने चाहिए। There has to be there the necessity of human law. Why there are laws and punishment? Why there is a prison? एक जेल क्यों रखा गया है? क्यों नियम रखे गए हैं? ताकि मनुष्य की जो भ्रष्टता है ना, उसे रोकने के लिए। फिर इन सब की जरूरत ही क्यों है अगर मानव जाति अच्छी है तो? If man is good, then why is the need of human laws? क्यों इन सब की जरूरत है फिर? To restrain man's lusts, मनुष्य के लालसाओं को रोकने के कारण। अब देखो सारे पुलिस फोर्स, जेल, प्रिजन, ये सारी चीजें रखी गए मनुष्य को रोकने के कारण, ताकि वो पाप के कार्य ना करे, क्योंकि उसका स्वभाव खराब है। इसी वजह से वो पाप करेगा। इसी वजह से तो परमेश्वर ने इन सब चीजों को रखा है संसार में, ताकि मनुष्य अपने क्या कहते हैं, लिमिट में रहे, नियंत्रण में रहे, कंट्रोल में रहे। लेकिन मनुष्य इतना खराब है कि इन सब के होने के बावजूद भी ये सारे चीजें फिर भी सक्सेसफुल नहीं है। Even man is so corrupted, even if there are laws, human laws,
there is strict laws, there is police force and prison and everything, still it is not successful. फिर भी वो मनुष्य को रोक नहीं पाई, इतना खराब है मनुष्य. You know what they say, that they say that education will make man controlled. Education will make man better. संसार आप सुनते होंगे, संसार कहता है मनुष्य को अगर सिखाया जाएगा ना तो अच्छा रहेगा, अगर मनुष्य को अच्छी शिक्षा दी जाएगी तो वो अच्छा बनेगा. बट बाइबल से इट्स कंप्लीटली फॉल्स. बाइबल कहता है सरासर झूठ है. अब आई विल गिव यू एन एग्जांपल. आपको एक एग्जांपल देता हूँ. एक गरीब चोर, अ पुअर थीफ, वो क्या चोरी करेगा? जो गरीब है, जो अशिक्षित है. दे से एजुकेशन विल मेक बेटर ना. सो लेट्स टेक एन इलिटरेट मैन. एक मनुष्य को लेते हैं जो अशिक्षित है और वो जाता है चोरी करने, तो वो कहीं छोटा दुकान देखेगा, वहां से कुछ चुरा लेगा. सही है, क्योंकि अशिक्षित है, क्योंकि गरीब है, तो वो कहीं पर भी हाथ मार लेगा. वो छोटी छोटी जगहों में जाके चोरी कर लेगा. He will go to small places and steal something from there. अब आप उसी चोर को पढ़ाओ. Now you educate that thief, that poor thief, you educate him. अब जाके वो बैंक चोरी करेगा. He will educate himself and then he'll go and rob a bank. वो अच्छे से सीख जाएगा और अभी तो वो ज्यादा भयंकर बन जाएगा. जब वो छोटी छोटी चोरियां करता था, अब जब शिक्षित हो चुका है, अब जाके बड़ी चोरी करेगा. So that is how education is not going to change a man. शिक्षण मनुष्य को अच्छा नहीं करने वाला. Another evidence, आप देखो ना, अपने घरों में देखो, दूर मत जाओ, अपने पड़ोसी के घरों में देखो. You see in the neighborhood, you see in your house, you see all the fights. आप देखो ना सारे झगड़े जो होते हैं, पाप का परिणाम. It is because of sin. That is why a husband cannot love his wife. इसलिए एक पति अपने पत्नी से प्रेम नहीं कर सकता. पाप का परिणाम. He wants to control his wife. उसे अपने पत्नी पर अधिकार जताना होता है. He wants to keep her below his foot. उसे अपने पत्नी को अपने पैरों तले रखना होता है. He wants to dominate. उसे राज करना होता है उस पर. अपने दोस्तों के सामने दिखाएगा कि वो कैसे कंट्रोल करता है अपनी पत्नी को. ये सब आप देखते हो ना आस पड़ोस में. He will even put her down in front of his friends. वो अपने दोस्तों के सामने उसे नीचा भी दिखाएगा, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो कैसे अपने पत्नी पर राज कर रहा है, कि वो कैसे अपनी पत्नी को कंट्रोल में रखा है. और वैसे ही आप देखो पत्नियों को भी, जो पति अपने पति से प्रेम नहीं रखते, वो कैसे अपने पति के बारे में बुरा चीजें अपने दोस्तों को बताते. Why? Sin, and sin is the issue. पाप और पाप ही है समस्या. It is the issue. यही है समस्या. That is why husbands cannot love his wife and wife cannot love their husbands. You see everywhere there is fight between brothers and brothers. भाइयों में भी झगड़ा होते हैं. ज्यादा अमीरों में भी होता है. अब देखते हो प्रॉपर्टीज के लिए झगड़ा होता है और बहुत सारी चीजों के लिए झगड़ा होता रहता है. भाइयों में, बहनों में, माँ बेटों में, बाप बेटों में, ये सब झगड़े क्यों? Sin is the issue. पाप ही है परिणाम. Now you ask yourself, aren't the scriptures true? क्या वचन सच्चे हैं नहीं? Aren't they true? Surely God's word is true. परमेश्वर का वचन सच्चा है. We are evil
परमेश्वर का वचन सच्चा है, वो कहता है कि मनुष्य बुरा है। मैन इज इविल, मनुष्य बुरा है। ही इज बॉर्न विथ अ सिंफुल नेचर, मनुष्य पापी स्वभाव से पैदा होता है। वो पापी स्वभाव जो परमेश्वर से जो प्रेम रखता था, अब वो पापी स्वभाव के वजह से परमेश्वर से मनुष्य नफरत करता है। He hates God. He hates God. Man hates God. He is born hater of God. वो पैदा ही परमेश्वर का नफरत करने वाला है, जन्म से ही। He is hater of God. Go to Romans chapter 3. रोमियो का 3 अध्याय। 9 वचन से आगे पढ़ते हैं, from verse 9. What then, are we Jews any better off? No, not at all. For we have already charged that all, both Jews and Greeks, are under sin, as it is written, none is righteous, no, not one. No one understands. No one seeks for God. All have turned aside. Together they have become worthless. No one does good, not even one. Their throat is an open grave. They use their tongues in deceit. The venom of asp is under their lips. Their mouth is full of curses and bitterness. Their feet are swift to shed blood. In their paths are ruin and misery, and the way of peace they have not known. There is no fear of God before their eyes. रोमियो का 3 अध्याय 9 से लेके 16 तक। फिर क्या हुआ कि हम उनसे अच्छे कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों को यह दोष लगा चुके हैं कि वे सबके सब पापी वश में हैं। ऐसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला पूरी कब्र है, उन्होंने कुशल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव बहुमान कान को फुर्तीले, उनके मार्गों में नाश और खुले से, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, कि आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। देखो ये तो और भी ज्यादा भयंकर बातें लिख रहा है पौलुस, और ये साम्स में लिखा गया है। वो कहता है their throat is an open grave, उनका मुंह खुली हुई कब्र है, उनके मुंह में सांपों का विष है। He's telling to both Jews and Greeks, मतलब अन्य जाति और धर्मी लोग दोनों, मतलब पूरा संसार। और पहले वचन में वही लिख रहा है, अगर हम ये सब सुनकर भी ये कहते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, आई एम नॉट लाइक दिस, आई एम गुड, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ, मैं उन सारे लोगों की तरह नहीं हूँ, तो पौलुस भी यही कह रहा था उन धर्मी लोगों को कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अच्छे हो, हम उनमें अच्छे हैं? नहीं, हम और वो हम सब पाप के अधीन है, पाप में है। वी आर अंडर सिन, वी आर अंडर द पावर ऑफ सिन। दैट इज व्हाट पॉल सेज। यही पौलुस कह रहा है कि हम सब पाप के अधीन है, पाप हम पर राज्य करता है। सिन रेन्स ओवर अस। दैट इज द स्टेट ऑफ मैन। ये मनुष्य जाति का स्थिति है, यही है मनुष्य जाति की स्थिति। सो व्हाट देन? और भी कई सारे आप देख सकते हो, और भी कई सारे एविडेंसेस है, सबूत है आपके सामने। आप ही देख लो दोस्तों में, भाई भाइयों में, दे हैव कॉम्पिटिशंस, उनमें स्पर्धा चली रहती है कि ये उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा, उसने अरे उस पर इतना अच्छा हुआ मेरे साथ भी अच्छा होना चाहिए, ईर्ष्या, ये सारी चीजें होती रहती है। So now the question is, can man repair this? प्रश्न ये उठता है कि क्या मनुष्य इसे ठीक कर सकता है? Can man repair this sinful nature?
क्या मनुष्य जाति इस पाप के स्वभाव को ठीक कर सकता है? कैन ही डू दैट? You tell me, can a leopard change its spot? क्या एक तेंदुआ अपने धब्बों को बदल सकता है? वैसे ही जो पापी है, जो पाप के स्वभाव में है, जिन्हें अच्छा करना आता ही नहीं, क्या वो अच्छे कर सकते हैं? That is what Jeremiah says in chapter 13 verse 23. He says, can the leopard change his spots? You see what he says. Jeremiah 13 का 23. Can the Ethiopian change his skin, or the leopard his spots? Then also you can do good who are accustomed to do evil. हिंदी में पढ़ो. क्या आपसे अपना चमड़ा दूसरा अपने बदल बदल सकता है? ये वे ऐसा कर सके तो भी जो बुराई करना सीखे ये भलाई कर सके. अगर लेपर्ड अपना धब्बों को बदल देगा, अगर तेंदुआ अपने धब्बों को बदल सकता है, तो ही मनुष्य अपने आप को बदल सकता है. और आपको पता है कि तेंदुआ अपने धब्बों को नहीं बदल सकता. मनुष्य अपने आप को नहीं बदल सकता. He cannot repair himself. He cannot repair this sinful nature. Man's nature is so corrupt. It is so corrupt that even after knowing that it is corrupt, still he is not scared of it. फिर भी उससे वो डरता नहीं है. He is not scared of his own nature. Why? Because not only sin is a part of his being, not only सिर्फ पाप उसके अस्तित्व का एक हिस्सा, सिर्फ हिस्सा ही नहीं, लेकिन वो पाप से प्रेम करता है. बाइबल ये सिखाती है कि मनुष्य अपने पापी स्वभाव से प्रेम करता है. It loves that sinful nature. He is deeply in love with it. वो बहुत प्यार करता है अपने पापी स्वभाव से. He loves his sinful nature. यूहन्ना 3 John chapter 3, see verse 19. यूहन्ना का 3रा अध्याय उसका 19वां वचन. And this is the judgment. The light has come into the world, and people loved the darkness rather than the light, because their works were evil. और धर्म की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे. अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय माना. Loved darkness. Man loves darkness. He loves darkness. और भी वचन है 2 थेसलोनियंस 2 का 12, 2 तिमोथी 3 का 1 से लेके 3. आप देखते हो, मैन इज लवर ऑफ हिमसेल्फ. ही लव्स सिन, एंड दैट इज व्हाई नो मैन कैन रिपेयर हिमसेल्फ. नो मैन रिपेयर हिमसेल्फ और एनीवन एल्स. वो अपने आप को भी नहीं ठीक कर सकता और दूसरों किसी को भी ठीक नहीं कर सकता. मैन कैन नॉट रिपेयर हिमसेल्फ. सो दैट इज व्हाई the problem is no man can be saved. कोई मनुष्य बच नहीं सकता. No man can be saved. Then what can be done? What can be done? क्या कर सकते हैं फिर? अगर कोई मनुष्य बच ही नहीं सकता इस पापी स्वभाव से, then what? What can be done? So we know that man's problem is not external but internal. Man does not need a new lifestyle. He does not require a new lifestyle, but it needs new birth. मनुष्य को
अच्छी जिंदगी की जरूरत नहीं है, अच्छे जीवन की जरूरत नहीं है, मनुष्य को नई जिंदगी की जरूरत है। इट रिक्वायर्स अ न्यू बर्थ, फिर से जन्मने की जरूरत है। इट रिक्वायर्स अ न्यू बर्थ। और यही यीशु ने भी निकोडेमस से कहा। Even this Jesus told Nicodemus, Nicodemus, you need to be born again. Nicodemus, तुम्हें फिर से जन्मना होगा। You need to be born again. Man does not need a change of circumstance. वो परिस्थिति को बदलने की जरूरत नहीं है। Man does not need a change of circumstance. Man needs a change of heart. मनुष्य को हृदय का बदलना जरूरी है, परिस्थितियों का नहीं। That's why Jesus Christ. इसी वजह से यीशु मसीह। That is why Jesus Christ. That is why you need Him. You need Christ. Because only Jesus Christ can save you from this sin nature. सिर्फ यीशु मसीह है जो आपको आपके पाप के स्वभाव से बचा सकता है। Only Jesus Christ. सिर्फ यीशु मसीह। Only Christ. You ask yourself, is there anyone like Christ there? क्या कोई है मसीह के अलावा? क्या कोई है मसीह के तरह जो आपको पाप के स्वभाव से बचा सकता है? कोई नहीं। No religion, nothing can save you from sin nature. You see for yourself. आप अपने आप से देखो कि कैसे एक व्यक्ति जो धर्मी है, कैसे एक व्यक्ति जो मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, जो चर्च जाता है, वो वहां पर प्रार्थना करता है, धर्मों के काम करता है, कैसे वो व्यक्ति सुबह जाएगा शाम को बुराई में है? कैसे संभव है? Why? क्यों ऐसा है? क्यों 5 बार प्रार्थना करेगा और फिर गालियां बकेगा? कैसे संभव है? How? Why? Sin. पाप। Sin is the issue. पाप ही है वो समस्या। So is there anyone like Christ? Is anyone who can solve the problem of sin? आप अपने आप से पूछो और सभी को पूछो कि क्या ये पाप का समस्या को किसने सॉल्व किया है? कोई है ऐसा जो पाप की समस्या को छुड़ा सकता है? कोई है ऐसा पाप की समस्या को सॉल्व करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? Is there anyone that will solve the problem of sin? Because I am a sinful man. I have this sinful nature. Is there anyone that can save me from this nature? That is the most important question. यही एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि क्या मुझे कोई इस पाप के स्वभाव से बचा सकता है? Because if you are according to the scriptures, पवित्र शास्त्र के अनुसार, रोमन्स 5:12 के अनुसार, you are guilty of death. और यही नहीं, बाइबल ये कहता है कि we were children of wrath. हम सब क्रोध के संतान। इसका मतलब children of wrath मतलब the wrath is due unto you, मतलब तुम पर क्रोध आना है, सभी पर क्रोध आना है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या हमें इससे बचाया जा सकता है कि नहीं? Can I be saved from this wrath? Wrath of God. परमेश्वर के क्रोध से कोई बचा सकता है कि नहीं? Can anyone save me from that wrath? None. यीशु ने कहा, आपको दृष्टांत पता होगा, जब वो धर्मी व्यक्ति उसके पास आया था, तभी उसने वो जाने के बाद अपने चेलों से क्या कहा? He said, it is easy for camel to go through the eye of the needle, but then a rich man to enter to the kingdom of God. He said, उसने कहा कि एक ऊंट को भी सुई के जो आँख है वो आसानी से जा सकता है, एक ऊंट भी जा सकता है, लेकिन मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। इतना कठिन है, मतलब असंभव है, मनुष्य को बचाना असंभव है। लेकिन फिर यीशु ने क्या? With man it is
impossible. मनुष्य के साथ ये असंभव है, but God it is possible. लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है. It is possible with God alone. सिर्फ परमेश्वर के पास ही ये संभव है. Only God can. Only Christ can. And that is how you see the good news of the gospel. You need Jesus Christ because you are a sinful creature. आप एक पापी व्यक्ति हो, मैं एक पापी स्वभाव से जन्मा हुआ व्यक्ति हूँ और मुझे यीशु की ज़रूरत है. I need Jesus. In fact, I only have Jesus. सिर्फ आपको यीशु की ज़रूरत ही नहीं, आपके पास यीशु के अलावा कोई है ही नहीं. You don't have anyone else than Jesus. And that is the good news of the gospel. और यही है सुसमाचार परमेश्वर का. यही है सुसमाचार कि यीशु में ही आपका पापी स्वभाव बदल सकता है. यीशु में ही वो पापी स्वभाव निकल जाएगा एक दिन. सिर्फ यीशु के वजह से, सिर्फ उसने जो किया क्रूस पर और फिर से जी उठा, उसी के वजह से. Today is the day of salvation. Today you put your trust in Him. आज ही आप उसमें अपना भरोसा करो, उसी में अपना भरोसा रखो. Trust in only Jesus because only Jesus can save you from sinful nature of you. आपके पापी स्वभाव से ही आपको वही बचा सकता. So look unto Jesus. यीशु को देखो. Let's pray. Lord, I come before you, Lord. Oh Lord, you prepare the hearts of your people, Lord, that they might know, Lord, who they are, who their self is. Why is there problem everywhere, Lord? Why do they see all things wrong, Lord, within their houses and everywhere in the world, Lord? Open their eyes, Lord, so that they may see sin, Lord, sin in action. Let them see sin in action, O Lord, and they might cry out to Christ, that they might cry out to Jesus Christ, only Jesus Christ, whom you have sent, Lord, to save His people from their sins. I pray, my Lord, that you touch us, open our hearts, open our eyes, Lord. In Jesus' name I pray.